ગુજરાતના વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામ તાલુકાના જરોલી ગામ ખાતે બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટના રૂટ પર આવતા પહાડમાં ટનલ બનાવવાનું કાર્ય હાથ ધરાયા બાદ 10 મહિનામાં તે પૂર્ણ કરી લીધું છે. કુલ 350 મીટરની આ સુરંગ 12.6 મીટરનો વ્યાસ ધરાવે છે. સુરંગની ઊંચાઈ 10.25 મીટર છે, જે સિંગલ ટ્યુબ હોર્સ શૂ આકારમાં નિર્માણ કરવામાં આવી છે, જેમાં 2 ટ્રેકો પર હાઈ સ્પીડ રેલ આવાગમન કરશે. ગુજરાત મહારાષ્ટ્ર વચ્ચે નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ કાર્યરત છે. આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ વલસાડ જિલ્લાનું જરોલી ગામ સમગ્ર ગુજરાતમાં એક નવી ઓળખ પામ્યું છે, કેમ કે અહીંના એક પર્વતમાંથી બુલેટ ટ્રેન આરપાર પસાર થવાની છે. નેશનલ હાઈ સ્પીડ કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા હાથ ધરાયેલ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ હેઠળ અહીં 350 મીટર લાંબી પર્વતીય ટનલનું કામ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવ્યું છે, જે અંગે NHSRCLના ચીફ પ્રોજેક્ટ મેનેજર સત્યપ્રકાશ મિત્તલ સહિતની ટીમે ગુરુવારે જરોલી ખાતે આવી ટનલનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. તેમની હાજરીમાં જ સુરંગના આખરી આરપારના એન્ટ્રન્સને એક્સપ્લોઝિવની મદદથી બ્રેક થ્રુ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ ગુજરાતની આ એકમાત્ર ટનલ છે જેને બ્રેક થ્રુ કરી ગુજરાત મહારાષ્ટ્ર વચ્ચે દોડનારી ટ્રેનના રૂટનો બંને તરફનો રસ્તો ખોલી નાખ્યો છે. પર્વતની જે ટનલ છે તે ટનલનો એક છેડો મુંબઈ તરફ તો બીજો છેડો અમદાવાદ તરફનો છે. ટનલ તોડવા માટે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી એક્સપ્લોઝિવની મદદથી જેલ ટાઈપના ડિટોનેટર વાપરી આ કાર્ય પૂર્ણ કરી લેવામાં આવ્યું છે. પહાડની અંદર સુરંગ બનાવવાના કાર્ય દરમિયાન ખૂબ જ સાવચેતી રાખવામાં આવી હતી. 350 મીટર લંબાઈની આ સુરંગમાં પથ્થરોને તોડવા માટે અંદાજિત 120 જેટલા બ્લાસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. આ બ્લાસ્ટ દરમિયાન કર્મચારીઓને સુરક્ષા પાડવામાં આવી હતી, તો આસપાસના એરિયાને ધ્યાને રાખી દિવસ દરમિયાન જ આ કામગીરી કરવામાં આવી હતી. રાત્રિના સમયે ટનલનું ખોદકામ સંપૂર્ણપણે બંધ રાખવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાતની આ એકમાત્ર ટનલ છે જે હાલ પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે, જ્યારે મુંબઈ અમદાવાદ વચ્ચેના હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોરમાં આવી બીજી 7 ટનલ છે જે મહારાષ્ટ્રમાં આવેલી છે. આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ તમામ કામગીરી લેટેસ્ટ ઇક્વિપમેન્ટ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. સુરંગનો આકાર હોર્સ શૂ ટાઈપમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જેથી સુરંગમાં જ્યારે પણ બુલેટ ટ્રેન પસાર થાય ત્યારે હવાનું દબાણ વર્તાશે નહીં અને તેની ગતિ અવરોધાશે નહીં. नमस्कार जी, मेरा नाम सत्यप्रकाश मित्तल है और मैं चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर NHRCL सूरत की पोस्ट पे यहाँ पर डेपुटेड हूँ और ये जुरिडिक्शन जहाँ पर आप खड़े हैं वो मेरे ही उसमें आता है. ये जो टनल आप देख रहे हैं ये गुजरात स्टेट का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का एकमात्र टनल है जिसका आज हमने ब्रेक थ्रू कर दिया. तो आप ये कह सकते हैं कि गुजरात से महाराष्ट्र का ये एक लिंक बन गया. अगर जिस एंड पे हम खड़े हैं गुजरात स्टेट है और इसका दूसरे एंड पे आप चले जाएंगे तो महाराष्ट्र स्टेट शुरू हो जाएगा. शुरू में जब हमने टनल का काम शुरू किया था इसमें एक्सप्लोसिव जो आपको टनल के अंदर जो रॉक्स वगैरह जो तोड़ने का काम होता है उसके लिए जो एक्सप्लोसिव यूज़ में लिया जाता है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको हमने इसमें यूज़ में लिया गया. जो डिटोनेट जो एक्सप्लोसिव है वो हमने इमल्सन बेस जो जेल टाइप जो एक्सप्लोसिव है वो यूज़ में लिया गया, जिसको डिटोनेटर के थ्रू डिटोनेट करते थे और उसमें जो सिग्नल है वो आपकी शॉक ट्यूब के थ्रू जाता था, जो कि नॉन इलेक्ट्रिक बेस आपका सिग्नलिंग टाइप है. टनल का जो काम हमने शुरू किया गया तो उसमें सेफ्टी का इशू सबसे पैरामाउंट इशू होता है. तो उसमें हमने इस चीज़ का इंश्योर किया गया कि जो एक्सप्लोसिव के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो ऑथराइज जो एजेंसी होती है, जो जिस पर्सन को इस काम के लिए कॉम्पिटेंट माना जाता है और सर्टिफिकेट इशू होता है, उन्हीं लोगों को हमने यहाँ डेप्यूट किया गया एक्सप्लोसिव के लिए. और इसमें ये भी हमने ध्यान रखा गया कि यहाँ पर जो वर्कमैन है, साइट इंजीनियर हैं, उनकी सेफ्टी 100% इंश्योर हो. इसके लिए हमने जो रिक्वायर्ड परमिशन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सबसे लिया. उन्होंने यहाँ पर साइट का इंस्पेक्शन किया, सब चीज़ को सेटिस्फैक्ट्री पाया, उसके बाद उन्होंने हमें अप्रूवल दिया काम करने के लिए. हमने ये भी ध्यान रखा कि आसपास का जो हैबिटेड एरिया है पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो इसके कारण. तो रात में हमने एक्सप्लोसिव का कोई काम नहीं किया गया. कोई भी ऐसा काम नहीं करते थे मशीनरी का जिससे उनको नॉइज़ पॉल्यूशन हो, उनको सोने में और रहने में तकलीफ हो. और दिन में जो भी हम काम किया जाता था वो ये इंश्योर करते थे कि इवनिंग से पहले काम खत्म हो जाए, और सारा एक्सप्लोसिव का काम दिन में ही करते थे और पूरा प्रोटेक्शन अरेंजमेंट भी करते थे. जहाँ एक्सप्लोसिव करते थे उसके बाहर हम काफ़ी बड़ा एक वॉल टाइप एक बना देते थे प्लास्टिक का, तो कोई भी मटेरियल आपका एक लिमिट के बाहर ना जाए, जो किसी को हार्ट ना करे. और शुरू में जब हमने काम शुरू किया तो शुरू में हम करीब 1.5 मीटर का पोर्शन हम एक्सप्लोसिव डेप्थ में यूज़ में लेते थे, और जैसे जैसे हम अंदर करते गए तो 1.5 मीटर का हम लेंथ बढ़ाते गए. डेप्थ 1.5 से 2.5, 1.5 से 2, 2 से 2.5, 2.5 से 3 मीटर. तो एन एवरेज हमने करीब 2.5 मीटर का हम एक मान सकते हैं कि डेप्थ में एक्सप्लोसिव किया.
और टोटल 350 मीटर में करीब 120 हमारे ब्लास्ट किए गए। ये इस पूरे प्रोजेक्ट में, जैसे मैंने आपको बताया, गुजरात में 1 टनल है, बाकी 7 टनल, टोटल 8 टनल है। 7 टनल महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है। और इसके अंदर ये है कि जो इसका जो डिजाइनिंग है वो सारा जापानीज़ एक्सपर्ट के द्वारा दिया गया, उसी के अनुसार जो हमने काम कराया गया है। और ये प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि जिसमें जो टनल के अंदर ये रहता है कि जिस टाइप का माउंटेन होता है, तो माउंटेन की स्टेबिलिटी का बड़ा इशू रहता है कि एक बार आपका टनल में आपने ब्लास्ट किया, होल कर दिया, तो उसकी स्टेबिलिटी भी आपको इंश्योर करनी है। अगर आप मेरे बैक साइड में देखेंगे तो उधर हमने इंस्ट्रूमेंटेशन लगाए हुए हैं कि वॉल के ऊपर, जो कि ड्यूरिंग ब्लास्ट और आफ्टर ब्लास्ट, तो टनल में अगर कोई डिफॉर्मेशन, कोई डिस्प्लेसमेंट होता है तो उससे हम उसको कैलकुलेट कर पाते हैं और अकॉर्डिंगली हम सेफ्टी मेजर का इंश्योर किया जाए। दूसरा, इसमें जो लेटेस्ट सर्वे के इक्विपमेंट है वो यूज़ में लिए गए, जिससे टनल का अलाइनमेंट एज पर रिक्वायर्ड जो हो वो हमें रिसीव हो। ये टनल हमारा 1 साल के अंदर ये काम पूरा हो गया हमारा, जब हमने शुरू किया था और आज हम खड़े हैं, तो इसका ब्रेक थ्रू हमारा 1 साल के अंदर कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इस चीज़ का इंश्योर किया गया कि लोगों को यहाँ तकलीफ ना हो। नाइट में हमने कोई काम नहीं कराया, ब्लास्ट जो किया वो सारा दिन में करते थे। और इसके अलावा हमने कहा कि हम एक कर्टेन वॉल बना देते थे कि कोई भी मटेरियल, कोई भी स्टोन, पत्थर जो आपका टूटा हुआ है वो हमारी लिमिट के बाहर जाए ही नहीं। इसलिए लोगों की हमारे यहाँ कोई ऐसी सच कंप्लेंट नहीं आई कि ना तो नॉइज पॉल्यूशन, ना एनी टाइप का कोई सेफ्टी हजार्ड का। ये टनल का डिजाइनिंग जो है वो हॉर्स शू टाइप है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है, जो भी व्हीकल टनल के अंदर जाता है, तो जब आप व्हीकल टनल के अंदर जाएगा तो उधर जो एयर है, तो एयर को डिस्प्लेस करता है व्हीकल। तो चूँकि स्पीड आपका बहुत ज़्यादा है तो एयर का डिस्प्लेसमेंट भी बहुत फास्ट होना चाहिए। तो इसका डिजाइनिंग थोड़ा नॉर्मल टनल से अलग रहता है कि जिससे आपका एयर का डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द एंट्रिंग ऑफ व्हीकल, और जब व्हीकल बाहर आता है तो एयर का एंट्रिंग इन द टनल वो स्मूथली हो और काफ़ी मतलब मिनिमम टाइम में वो ट्रांजिशन उसका काफ़ी स्मूथ हो।